السلام علیکم۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نواب ولی محمد کے نواحی گاؤں کریم داد ہاسخیلی کے رہائشی پاکستان آرمی کا شہید سپاہی الکمیر ہاسخیلی کی نیش نواب ولی محمد شہر پہنچنے پر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی شہید بینظیر آباد کے کارکنان اور قائدین کی جانب سے سلامی پیش پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے استقبال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نواب ولی محمد کے نواحی گاؤں کریم داد ہاسخیلی کا رہائشی پاکستان آرمی کا سپاہی وانا میں دہشت گردوں کے مقابلے کے دوران شہید ہو گیا۔ شہید کا جسد خاکی نواب ولی محمد پہنچنے پر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ضلعی شہید بینظیر آباد کے جنرل سیکرٹری عبدالستار چانٹی اور تعلقہ قاضی احمد کے صدر یاسین کاون کی قیادت میں سینکڑوں افراد نے شہید کا استقبال کیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ بعد میں شہید کو ریلی کی صورت میں اپنے آبائی گاؤں روانہ کیا گیا۔ چیف وہب پنجاب اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی رانا محمد ارشد کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے شاہ کوٹ پہنچے۔ انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتح خوانے کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ آج پاکستان بالخصوص پنجاب میں حکومت کی جانب سے عوام کو فراہم کی گئی سہولیات واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی قائم ہے، شاہراز محفوظ ہو چکی ہیں اور منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ سیاست میں انتشاری ٹولے نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ یہ بات نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، بلکہ انتشاری سیاست نے خود انہیں عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں سیاسی انتقام کے بجائے قانون کے مطابق سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ ماضی میں سیاسی انتقام کے تحت میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا، تاہم موجودہ حکومت قانون و انصاف کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ آخر میں انہوں نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں گلیات سے۔ سردار مہتاب کی رپورٹ کے مطابق گلیات موتیا گلی گاؤں کے سرافلی کے رہائشی نوجوان عبدالغفور نے کوہالہ پل سے دریا میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔ 5 دن گزر جانے کے بعد ابھی تک لاش نہ مل سکی۔ بھائیوں کے بیچ ایک مکان کا تنازع ہوا جس کی وجہ سے اس کو ذہنی ٹارچر کیا گیا اور وہ زندگی سے تنگ ہو کر دریا کی موجوں میں بہہ گیا۔ تاحال سرچ آپریشن جاری ہے، لاش کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ لاش کو ریکوری کرتے ہوئے مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں۔ مقامی لوگ، ریسکیو ٹیمیں اور پولیس تلاش کے لیے دریائے نیلم کوہالہ پل پر موجود ہیں۔ یہ شخص 17 جنوری کو گھر سے کام پر نکلا تھا اور دن 2 بجے کے قریب کوہالہ پل سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔ عبدالغفور 2 بیٹی اور 2 بیٹوں کا باپ تھا۔ تاحال اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوہالہ پل میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ مکلی پولیس کی جانب سے سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما راجو قریشی کی گرفتاری کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی، تاہم سیاسی و سماجی کارکنوں کے شدید احتجاج کے بعد پولیس نے انہیں رہا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ ترقی پارٹی کے رہنما راجو قریشی گزشتہ رات اپنے بھتیجے اور سیاسی و سماجی رہنما عبدالغنی قریشی کے نوجوان بیٹے اسد قریشی پر اوباش نوجوانوں کے حملے اور فائرنگ کے واقعے کی رپورٹ درج کرانے مکلی تھانہ پہنچے تھے۔ راجو قریشی کا موقف ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کی نشاندہی کے باوجود پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے انہیں ہی گرفتار کر کے لاک اپ میں ڈال دیا۔ راجو قریشی کے مطابق جب انہوں نے ایس ایچ او مکلی سے اس معاملے پر سوال کیا تو انہیں دھمکیاں دی گئی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بلا جواز لاک اپ میں رکھا گیا۔ راجو قریشی کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی سندھ ترقی پسند پارٹی، ایپکا اور دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں کے کارکن بڑی تعداد میں مکلی تھانہ پہنچ گئے، تھانے کو گھیراؤ میں لے لیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کنکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے۔ ہمارے رپورٹر شفقت حسین کی رپورٹ کے مطابق کشمور پولیس، وفاقی حساس اداروں، سول انٹیلیجنس اور سندھ رینجرز کا مشترکہ آپریشن کامیابیوں کا تسلسل برقرار۔ بدنام زمانہ اور خوف کی علامت بننے والا خطرناک ڈاکو ابراہیم عرف ابرو شر قانون کے سامنے سرنڈر کر گیا۔ ضلع کشمور میں امن و امان کے قیام کے لیے کشمور پولیس، وفاقی حساس اداروں، سول انٹیلیجنس اور سندھ رینجرز کی مشترکہ کارروائیاں کامیابی سے جاری ہیں۔ کشمور اور گوٹکی کے کچے کے سرحدی علاقوں میں جاری آپریشن کے دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایس ایس پی کشمور محمد مراد کی قیادت میں جاری مؤثر اور مسلسل آپریشنل دباؤ کے نتیجے میں علاقے میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے ایک خطرناک اور بدنام زمانہ ڈاکو نے خود کو قانون کے حوالے کرتے ہوئے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنے والا ڈاکو اغوا برائے تاوان، بطہ خوری، پولیس مقابلوں، قتل، اقدام قتل سمیت متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا اور طویل عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ سرنڈر ہونے والے ڈاکو ابراہیم عرف ابرو شر ولد نیک محمد شر کشمور پولیس، وفاقی حساس ادارے، سول انٹیلیجنس اور سندھ رینجرز اس عدم کا اعادہ کرتے ہیں کہ علاقے سے ڈاکو، جرائم پیشہ عناصر اور بدامنی کے مکمل خاتمے تک مشترکہ آپریشن پوری قوت اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔
पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की जाने वाली बड़ी तादाद में रेलवे की पटरियां, मजदा ट्रक तहवील में ले लिया, मुलजिमान फरार होने में कामयाब, पुलिस का दावा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कंडी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर गुज़िश्ता शब कार्रवाई करते हुए कंडी के करीब कंचे जी मोरी पर कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में चोरी की जाने वाली रेलवे की पटरियां और पटरियों से भरा ट्रक अपनी तहवील में ले लिया। कार्रवाई के दौरान एक भी मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम सलीम और दीगर रेलवे की पटरियां उखेड़ कर मजदा ट्रक में लोड कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। दूसरी जानिब जराये से मालूम हुआ कि पुलिस ने कार्रवाई करने के दौरान बड़ी तादाद में रेलवे की पटरियां बरामद की थी, लेकिन सिर्फ 20 पटरियां ज़ाय की गई हैं। जराये ने यह भी कहा है कि पुलिस ने मुबैना मुकमका के बाद मुलविस मुलजिमान और पटरियों से भरी दूसरी गाड़ी को छोड़ दिया, जबकि पुलिस का दावा है कि मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिसके बावजूद पुलिस ने मुलजिम समेत दीगर नामालूम मुलजिमान को नामजद करके इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैरत इस बात पे है कि जब मुलजिमान फरार हो गए तो पुलिस ने सलीम के मुलविस होने का कैसे इल्म हुआ। एबटाबाद स्पेशल सेक्रेटरी केपीके का डीएचक्यू अस्पताल एबटाबाद का अहम दौरा, अस्पताल में दाखिल मरीजों से मुलाकात की। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर अवान से। हाँ जी बिल्कुल। आज स्पेशल सेक्रेटरी केबीके ने डीएचक्यू अस्पताल एबटाबाद का तफसीली दौरा किया है। इस मौके पर ज़ेर तमीर नई बिल्डिंग का भी मुआयना किया गया है और मुख्तलिफ वार्ड में दाखिल मरीज़ों से मुलाकात की गई है। मरीज़ों से सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत फराम की जाने वाली अद्वियात और सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया गया है और सर्विस डिलीवरी पर इत्मीनान का भी इज़हार किया गया है। इस दौरे के दौरान एमएस, डीएमएस, इंचार्ज पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल की दीगर मुतल्लिका टीम भी हमरा मौजूद थी, जिन्होंने अस्पताल में जारी इंतजामात और सहूलियात के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी है। ये दौरा आवाम और बेहतर मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी की जानब एक मुस्बत कदम बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तनवीर अमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, जरवार का भटाई प्रेस क्लब जरवार के बानी मीर जादो बजदार की चौथी बरसी का प्रोग्राम का इनेकाद भटाई प्रेस क्लब जरवार में किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फखरुद्दीन बजदार से। जी फखर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। भिटाई प्रेस क्लब के बानी मीरादो बोजदार की आज चौथी बरसी के मौके पर भिटाई प्रेस क्लब जरवार में प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। मजीद आने वाले लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल। मीरजादो बोजदार एक बेबाक सहाफ़ी था जरवार शहर का, जिसने अपनी कलम के ज़रिए जो यहाँ पर एरिया है, इलाका है, उस पे अपना नाम रोशन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हमारे भाई सहाफ़ी मीरजादो मरहूम की चौथी बरसी है, इस हवाले से आज भिटाई प्रेस क्लब के जो दोस्त हैं, सोशल वर्कर हैं, समाजी वर्कर हैं, सियासी दोस्त हैं, वो सब आज भाई मीरजादो मरहूम की इसाले सवाब के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और हम भाई मीरजादो मरहूम के चौथी बरसी पर उनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं, जो उन्होंने हक और सच का अलम बरदार जो थे वो उठाया हुआ था आलम। मीरामंद बोलदार, मीरजादो बोलदार जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा सा सहाफ़ी इस जरवार का रह चुका है। धरती टीवी में उसका बहुत किरदार है। वो मजलूमों का दोस्त था और हर मसाइल उजागर करते थे। जरवार के जो भी प्रॉब्लम मसाइल जरवार में होते थे, समाजी बुराइयों का हो और मसाइल हो, वो सबसे आगे होते थे। भिटाई प्रेस क्लब जरवार में मरहूम मीरजादो बोजदार की बरसी है। बरसी तकरीब में तमाम दोस्त शरीक हुए हैं, उनके लिए कुलखानी की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, मंजूर। मीरजादो बोजदार हमारा एक बेहतरीन दोस्त था। उसके मिशन को इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। हम सब दोस्त मिलके उनकी जो है मिशन को हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरजादा जो साफ़ी था ना, वो साफ़ी भी था, हमारे फनकनर लीग के असासा भी था, वो सीनियर नायब सदर था ताल के मीरपुर मातेलो का। हम उसको सुर्ख़ सलाम करते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। रहमानिर्रहीम। आज मरहूम मीरजादो बोजदार जो भिटाई प्रेस क्लब जरवार के बानी थे, आज हम उसकी चौथी बरसी मना रहे हैं। भिटाई प्रेस क्लब जरवार का बुनियाद रखने वालों का जो नाम है, जिसकी शुरुआत मरहूम मीरजादो बोजदार ने की, हम आज भी हम उसी मिशन को साथ लेके चल रहे हैं। शहर के समाजी मसाइल हो या कोई भी अहम इशू हो तो इंशाल्लाह हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। तफसीलात के लिए शुक्रिया फ़खर। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। न्यू कोर्ट के नवाही इलाके मीरकोट जान मोहम्मद के करीब LBOD के RD 212 पर मौजूदा आबी गुजरगाह पर
पुल खस्ता हाली का शिकार, लातादाद बच्चे तालीम के असूल के लिए पुल से गुजर कर स्कूल जाते हैं, लेकिन अरसा दराज से ये पुल नाकारा हो गया है। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक कामरान। जान मोहम्मद के नुआई इलाके LBOD के RD 212 पर वाक़या पुल आबी गुजरगाह शदीद खस्ता हाली का शिकार है। ये पुल रोज़ाना स्कूल जाने वाले लातादाद बच्चों के ज़ेर इस्तेमाल है, मगर अरसा दराज से फूट का शिकार होने के बाद किसी भी बड़े हादसे का शिकार बन सकता है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका अहकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पुल की मरम्मत करके बच्चों और शहरियों की जानों को महफूज बनाया जाए। हमारे गांव में कोई हाई स्कूल नहीं है, इसलिए हमें 3 किलोमीटर इस दूर हाई स्कूल में आना पड़ता है। स्कूल जगह जगह में टूटा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से मचने के लिए मुश्किलात होती है। साइदा दलियानी से ताल्लुक रखते हैं और ये हमारी सिम है, ये टूटी हुई है पुल, हमें मेहरबानी करके ये बनवा दें, हमारा यही है गुजर। साइदा दलियानी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। यहाँ से जो है विलेज साइदा दलियानी से 300 प्लस बच्चे इस स्कूल से गुजर कर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोट मिर्जा मोहम्मद जाते हैं। पहली बात ये कि विलेज साइदा दलियानी में कोई भी एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सतह तक स्कूल है। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का फासला है जो बच्चे रोज यहाँ से गुजरते हैं। स्कूल की हालत जो है वो बहुत ही खराब हो गई है, यहाँ पे जाली और माली नुकसान हो सकता है। ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 300 प्लस है और ये इस पुल से गुजरते हैं, तो हमारी आलस्ता से गुजारिश है कि ये पुल तामीर करा के दीजिए। इलाका मकीनों का कहना है अगर बर वक्त मरम्मत ना की गई तो किसी भी बड़े हादसे का खदशा है। शहरियों ने मुतल्लिका अहकाम से फौरी नोटिस लेने और पुल की मरम्मत का मुतालबा किया है। मलिक कामरान, A1 न्यूज़, नौकोट। जैकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बरोर की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद कौमी शाहराह शंबे शाह के मुकाम पर असास इदारों और जिला इंतजामिया ने आटे और गंदम की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। आटा और गंदम से भरी 150 से ज्यादा गाड़ियां तहवील में लेकर लाखों मन आटा और हजारों गंदम की बोरियां बरामद कर ली। कार्रवाई में बरामद होने वाले आटे और गंदम की मालियत तकरीबन 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त की गई गंदम और आटा सरकारी नरखों पर नीलाम किया जाएगा ताकि सिंध आवाम को रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। हवेली लखम में दीवान शाहजेब अहमद की रिहाइशगाह पनाह नगर में फ्री आई कैंप में आंखों की मुफ्त ऑपरेशन और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में फैसल शहजाद असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर हुसूसी शिरकत। फ्री आई कैंप 1500 के करीब ऑपरेशन किए जाएंगे। फ्री लेंस, फ्री अद्वियात और खाना भी मुहैया किया जाएगा। हसन अब्दाल के गांव पिंड महरी में घरेलू तनाज़ा के दौरान अफसोसनाक फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां एक शख्स ने अपने ससुराल में घुसकर 4 लोगों के कत्ल के बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। फायरिंग के नतीजे में सास 55 साला जोजा निसार और इसकी अपनी बेटी 2 साला कायनात वल्द नासिर मौके पर ही जांबाग हो गई। वाकये के बाद 36 साला नासिर वल्द महफूज ने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। फायरिंग के दौरान ससुर 60 साला निसार वल्द असलम और 6 साला बेटा फलक वल्द नासिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर प्राइवेट गाड़ी के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। गाँव में खौफ की फिजा फैल गई। सहवन बाईपास रोड पर जगह जगह दरारें पड़ने के बायस ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन गए। NHA हुकाम की अदम तवज्जो के बायस सहवन कॉलेज रोड से लाल बाग तक बाईपास रोड के मुख्तलिफ हिस्से शदीद तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिससे शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक सहवन डायमंड होटल के करीब पेट्रोल पंप के मकाम पर रोड के हालात इंतहाई खराब हो चुकी है, जहां आए रोज ट्रैफिक हादसा पेश आ रहे हैं। हाल ही में डायमंड होटल के करीब खराब सड़क के बायस 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। जराये के मुताबिक एक गाड़ी ने खराब रोड के बायस रफ्तार कम की तो पीछे से आने वाली दूसरी गाड़ी इससे टकरा गई। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दोनों गाड़ियों के बाज़ हिस्से मुतासिर हुए। मकामी शहरियों का कहना है कि सहवन में अर्ज करीब आ रहा है और मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। ऐसे में बाईपास रोड की खस्ताहाली किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अवाम ने NHA में मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि सहवन कॉलेज से लाल बाग तक बाईपास रोड को फौरी तौर पर नए सिरे से कारपेट करके महफूज बनाया जा सके ताकि किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। 70 सालों से सियासी माफिया ने जाफराबाद के अवाम के अरबों रुपए करप्शन किए। MPA अब्दुल मजीद बादीनी, MPA जाफराबाद इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीन इस वक्त जाफराबाद में मुनक्किद खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। के बाद मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले फोकस किया है सेहत को, कि मेरे लोग सेहतमंद होंगे तो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पर तालीम है, तीसरे नंबर पर आपका ज़रूरी पानी और पीने के पानी पर काम कर रहा हूँ और उसी पर जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले सेहत, तालीम,
और पीने का पानी और हमारा ज़रूरी पानी, ये हमारे लिए बहुत अहम है। और मैं सबसे ज़्यादा फोकस्ड हूँ इन 3 चीज़ों पर। और उसके बाद है सबसे ज़्यादा रोज़गार। आप यकीन जानिए इस हुकूमत में बहुत सारी नौकरियां, वैसे बजट में 6000 नौकरियों की ऐलान हुई थी, मगर मैं कहता हूं इस टाइम बहुत सारी नौकरियां इस सूबाई हुकूमत ने दी और सूबाई हुकूमत के बहुत ऐसे काम हैं जो काबिल तारीफ है। तो आप सबको नजर भी आ रहे होंगे जिस तरह से यहाँ से 30,000 नौजवानों को बाहर मुल्क भेजने का प्रोग्राम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।